Hello everyone, welcome back in this lecture. Guys, today our topic is interference of light. You have already studied this topic, interference, in class 11, but you have studied interference phenomena for the sound waves. किसके लिए स्टडी किया आपने? साउंड वेव के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th में इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लर्न करा गया था. Superposition principle. What is the superposition principle? It states that when the two and more than two waves which are propagating in any medium and superpose at any point in the medium, then the resultant displacement produced by these waves is given by the vector sum of the displacement which is produced by the individual waves. Okay, so this is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी मीडियम में जब प्रोपेगेट हो रही हो और वो सुपर इम्पोज होती हैं किसी जगह पे जाकर के, किसी पॉइंट पे जाकर के, तो वहां जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये प्रोड्यूस करेंगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किस पर करेंगी? किसी पार्टिकल पर. जब किसी मीडियम किसी पार्टिकल पे जाकर के इनका सुपरपोजिशन होगा तो वहां जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स. वेक्टर सम के इक्वल होगा. जो सबने अलग अलग अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है. दिस इज द बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है ये? इट स्टेट्स व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स propagating in medium, in any medium, when superimpose on each other at a point, then the resultant displacement produced by the superposition is equal to the vector sum of individual displacements produced by the waves. That is, if y1, y2 and y3 are the displacements produced by individual waves, the resultant displacement resultant displacement
produced by waves is y equal to y1 plus y2 plus y3 is given as or given by y equal to y1 plus y2 plus y3. So this is the basically superposition principle. It states that when two or more than two waves propagating in any medium when superimposed on each other at a point in the medium then the resultant displacement produced by the superposition is equal to the vector sum of individual displacement produced by the waves. That is, if y1 y3 are the displacement produced by the individual waves, then the resultant displacement produced by the waves is given by y equal to y1 plus y2 plus y3. Okay students, so basically this is the superposition principle. Now come on the topic interference phenomena. What is the interference of light? Interference. What is the interference? Interference just the modification of distribution of intensity is known as the interference. Modification of distribution of intensity of light, you can also say intensity of light waves in the region of superposition is known as interference. Okay, this phenomena is known as the interference. Modification of distribution of intensities means क्या है इसका? When the two waves or more than two waves superpose on each other, superpose हो रही हैं, कब of same frequency की हो और same direction में propagate हो रही हो, तो ही interference होता है इसका. ठीक है, तो वहां क्या होगा, जहां सुपरपोजिशन का हुआ है उस रीजन में कहीं पर तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है. तो ये इसका मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी जो हुआ है, दिस फिनोमेना इज नोन एज द बेसिकली इंटरफेरेंस. इसकी कंडीशन क्या है? इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है व्हेन टू और more than two waves of same frequency propagating in same direction. When two or more than two waves of same frequency propagating in the same direction superimpose on each other, then interference occurs. Okay, so this is the basic condition of interference phenomena. Okay students, now that we will discuss about the mathematical part of the interference. लेकिन कंडीशन ध्यान रखना कि हमें दो वेव्स ऐसी लेनी है जो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हो और सेम फ्रीक्वेंसी की हो. कैसी हो? सेम फ्रीक्वेंसी की. एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, नियरअबाउट डिफरेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो कंडीशन सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट होनी चाहिए. तो आपको ये प्रोपोगेशन पता आ गया था कि किस तरीके से आप पता लगाते हो ये सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है या नहीं हो रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिकल पोर्शन.
एक डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं पहले, आपको वहां से वेव्स के बारे में जो थ्योरी है वो क्लियर होगी थोड़ा। ये दो कोई लाइट सोर्स हैं, इनसे किसी पॉइंट पी पर यहां लाइट वेव्स रीच होती हैं, यानी सुपरपोजिशन हो रहा है इन दोनों का यहाँ पे पॉइंट पी पे। ये लाइट सोर्स S1 है और यहां से लाइट सोर्स S2 है। इनिशियली इन दोनों के बीच में ये दो वेव्स यहां से जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, डेल्टा फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो फेज डिफरेंस क्या है? 0। इनिशियली नो फेज डिफरेंस, ओके, या इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है? 0 है यहाँ पे। तो देखो आप यहाँ पे कि यहां से इस सोर्स से जो लाइट वेव जा रही होगी वो कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इससे जो जा रही होगी उसको कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। सपोज ये यहां x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और ये ट्रेवल कर रही है x प्लस डेल्टा x, इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही है। तो कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट, ये डायग्राम प्लॉट कर लेंगे आप यहाँ पे, लेट द टू वेव्स of same frequency omega propagating in same direction of amplitudes A1 and A2 if the displacements of waves are y1 and y2, and y1 equal to A1 sin ओमेगा t प्लस kx, एक इक्वेशन लेट कर दी हमने यहाँ पे, एंड द सेकेंड इक्वेशन y2 इक्वल टू A2 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस, देखो यहाँ पे कि x था केवल, और यहाँ कितना हो गया x, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस डेल्टा x, तो k प्लस डेल्टा x। एक इक्वेशन तो ये थी, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लेके आ रहे हैं। ये टर्म जो है यहाँ पे k डेल्टा x इक्वल टू 5, दिस इज द बेसिकली फेज डिफरेंस हियर। जहां इनका सुपरपोजिशन हुआ है वहां पर इनमें फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस है, ये तो कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो जब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है, तो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा? देखो 11th में आपको बताया था इस तरीके से। अब कोई भी पहले से ही ट्रेवल करके आ रही है जैसे यूं, इनमें फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे इस तरीके से 5 फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी? A2 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5, दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये साइन आ गया यहाँ पे तो हार्मोनिक हो गई, ठीक है, ओमेगा है, और ये x आ गया यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है ये। तो दोनों ही हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हैं जिनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। ओमेगा देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, डिस्प्लेसमेंट एक का y1 है और दूसरी का क्या है? y2। तो फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसीलिए तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, अप्लाई करते हैं। फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है ये? y इक्वल टू y1 प्लस y2, सो y इक्वल टू y1 A1 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस A2 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5,
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यहां से, मैथमेटिकल पोर्शन है यहाँ। सो y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ए प्लस बी, इतना a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या होगा a2 तो मतलब बाहर ही रहेगा, ये रहेगा साइन ए कॉस बी, इट मीन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स साइन ए कॉस बी एंड कॉस फाइव प्लस a2 cos a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू साइन फाइव। ये इक्वेशन बन गई यहां पे। अब क्या करो आप, ओमेगा टी वाली टर्म को तो एक जगह लिख लो, ये वाला एक जगह लिख लेते हैं और बाकी टर्म को दूसरी जगह लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हियर y इक्वल टू, इस दोनों देखो, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें यहां तक का ऊपर वाला पोर्शन, तो इसमें से साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स यहां भी है और यहां भी है, तो कॉमन ले सकते हो आप उसको। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्या बचा वो लिख दो, वहां से मिलेगा a1 प्लस यहां से क्या मिला a2 cos फाइव, ओके, प्लस जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख दो यहां से a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, cos ओमेगा टी प्लस के एक्स और साइन फाइव। ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई। अब मुझे ये जो इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन थी साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में, उसी में लिखना है। तो यहां पर मुझे कुछ कंसीडरेशन करना पड़ेगा। अगर मैं इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल टू, यहां से a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल टू a cos थीटा। ये लेट कर लिया मैंने यहां पे, ठीक है, लर्न रखना इस चीज को यहां पे। दूसरा देखो ये बन गया साइन ए cos बी, ठीक है, cos ए तो है ही यहां, अब ये बचा साइन बी ये वाला, तो इसको लेट कर लो यहां पे, क्या a2 साइन फाइव, ये वाला कंप्लीट, इन दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट में है, लेट कर सकते हो a2 साइन फाइव इक्वल टू, अगर नहीं तो आप ऐसे तो लिख सकते थे इसको cos ओमेगा टी प्लस के एक्स इंटू a2 साइन फाइव, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे ऊपर वाली इक्वेशन को। तो a2 साइन फाइव को आप लेट कर लीजिए a साइन थीटा। ऐसे क्लियर हुई क्या? हमने लेट किया तो वहां वैल्यूज को इनको सब्स्टिट्यूट कर दो। सो अब क्या होगा वो, अब वो इक्वेशन y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दिस वन टर्म a cos थीटा, a यहां लिख लेते हैं cos थीटा प्लस वो क्या यहाँ पे a2 साइन फाइव को लेट किया था आपने a साइन थीटा, तो a तो यही लिख लेते हैं cos ओमेगा टी प्लस के एक्स और ये साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, देखो y इक्वल टू a तो पूरे में कॉमन बाहर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बनना है क्या, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। So this is the resultant displacement or the resultant equation of the by which is produced by the superposition. So this is the equation of the resultant displacement. ये है resultant displacement की equation जो हमें यहाँ पे obtained हुई है। ओके, अब हम ये एम्पलीट्यूड A जो लेट किया है आपने, उस एम्पलीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करें? तो इन दोनों इक्वेशंस को देखो यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके हम ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को आप स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो स्क्वायर करके ऐड करो जरा, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग
बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इनको स्क्वायर कर लो डायरेक्टली यहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाइव इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हियर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर लो a1 स्क्वायर प्लस ये देखो a2 स्क्वायर यहाँ दोनों में आ रहा है, a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या है यहाँ साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी बन गई ना 1 हो जाएगा। रिमेनिंग ये टर्म बची 2a1 a2 कॉस फाइव इक्वल टू a स्क्वायर, यहां भी कॉमन ले लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये टर्म भी 1 हो गई और ये टर्म भी 1 हो गई यहाँ पे, तो क्या मिला आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यहां से, तो a यहां से क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू हो गया रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5. So this is the amplitude of the resultant displacement. जो resultant displacement equation आई है उसका amplitude की वैल्यू क्या है, ये है यहाँ पे। If you want to find out the angle theta, तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करके एंगल भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें कैपिटल A इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5। अब यहां A क्या है, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुई है उसका एम्पलीट्यूड है। इट मींस सुपरपोजिशन होने के बाद जो फाइनल लाइट वेव होगी, जो फाइनली लाइट वेव प्रोड्यूस हुई है वहां पे, इट कैन बी डेंसिटी, एनर्जी, कुछ भी हो जो भी यहां पर प्रोड्यूस हुआ है उसका क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ओके, इस एम्पलीट्यूड को किस तरीके से एक्सप्लेन करें, यहाँ कैसे निकालें हम यहाँ, तो उसका पैटर्न मैंने ये बताया कि इसकी वैल्यू ये आ गई, यहां से इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो ये हमें a ऑब्टेन हो गया रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5। देखो फाई और थीटा क्या है, फाई एक्चुअली जब ये दोनों वेव्स यहां सुपरपोज हो रही थी तो उन दोनों में फेज डिफरेंस है। इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल बाद जहां यहां जो पहुंची है इस पॉइंट P पर, वहां पर जाकर के फेज डिफरेंस इनमें प्रोड्यूस्ड हो गया है। ओके, थीटा क्या है, थीटा इज द फेज डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट वेव विद द इंडिविजुअल वेव्स ऑफ सुपरपोजिंग। ये जो इंडिविजुअल वेव्स थी ये वाली, जिनका सुपरपोजिशन होने के बाद रिजल्टेंट वेव बनी है, तो ये थीटा फेज डिफरेंस है इनके साथ में। थीटा फेज डिफरेंस है किसका, फेज डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट वेव विद द इंडिविजुअल वेव्स व्हिच आर सुपरइम्पोजिंग, जो सुपरइम्पोज हो रही थी, जिनका सुपरपोजिशन हो रहा था उसके साथ फेज डिफरेंस है। ओके, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। इनिशियल फेज डिफरेंस है किसका, ये रिजल्टेंट वेव का, जो रिजल्टेंट वेव जो हमारी प्रोड्यूस हुई है वहां पे, इसका थीटा यहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको हटा रहे हैं यहां से हम, ये क्लैरिफाई हो गया आपको। दो इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, यहां से दो इक्वेशंस का हमने क्या किया था, सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया है। एक इक्वेशन थी आपके पास y1 जिसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, और दूसरी थी हमारे पास y2। मैं यहां लिख ले रहा हूं इक्वेशंस को जो हमने ली थी फाइनली। y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन थी y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx प्लस 5। ओके, दीज टू वेव्स थी जिनका सुपरपोजिशन हुआ था।
सुपरपोजिशन होने के बाद ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो गई। यहां तक क्लैरिफाई हो गया था। उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव with the individual waves। ओके, इंडिविजुअल वेव्स कौन सी, ये वाली। सो वहां से ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा। देखो मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, ए साइन थीटा ओवर ए कॉस थीटा इक्वल टू A2 sin phi ओवर A1 प्लस A2 cos phi। तो यहां से एक से एक कैंसिल, साइन थीटा और cos थीटा टेन थीटा इक्वल टू A2 sin phi ओवर A1 प्लस A2 cos phi। इट मीन्स यू कैन से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin phi over A1 plus A2 cos phi। क्लियर हो गया। So this is the phase difference of the resultant wave with the individual wave, and this one is the amplitude. Now you have to find out the condition of constructive and destructive interference। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं पहले ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड यहाँ दो कंडीशन होगी, कौन सी, कि ए मैक्सिमम कब होगा और ए मिनिमम कब होगा। ए मैक्सिमम कब हो सकता है, देखो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, नॉट 0। ठीक है, तो यहां पे हम कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। यानी एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है, यानी सेम फेस में जब दोनों की दोनों वेव्स सुपरपोज होती हैं एक दूसरे पे, तब तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे पर, तब वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहां डिस्कस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस when two waves, और ये दोनों जो waves थी, when these waves superimpose in opposite phase, superimpose on in same phase, then the amplitude and intensity, of resultant wave, amplitude of resultant wave is maximum constructive interference when these waves superimpose in same phase, then amplitude of resultant wave is maximum, and also intensity becomes maximum। ओके, मैंने भी आपको इंटेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ नहीं बताया, मैं एक लाइन में इंटेंसिटी यहाँ बता देता हूँ आपको, आप यहाँ नोटिफाई कर लेना। यहाँ से मैं यहाँ इंटेंसिटी नोट करूंगा, देन यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट केस। ओके, एम्प्लीटिकल क्या है रिजल्टेंट वेव का, इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, ये नहीं लिखनी इक्वेशंस, ये तो मैंने आपको फॉर्मली लिख रखी है फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि इन दोनों वेव्स का सुपरइम्पोजिशन हो रहा है, दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस इन दोनों वेव्स का हो रहा है, इसलिए नोट किया हुआ है। तो पहले ये नोट करेंगे आप, फिर यहां तक आ जाएंगे। ठीक है,
या यहां पर आने के बाद ही आप इंटरफेरेंस नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? इंटरफेरेंस, सॉरी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होती है? इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑलवेज प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। सो आई इक्वल टू के, ए स्क्वायर करोगे वहां से क्या मिल जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है। इफ I1 and I2 are the intensities, I1 I2 इसको हटा दे रहे हैं अभी यहां से, इसके बाद केस ले आएंगे। If I1 and I2 are the intensities of waves, then I1 equal to k a1 square and I2 equal to k a2 square. So from the above equation you have got I equal to this one, I1 plus I2 plus, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां से देखो ये a1 है, केवल स्क्वायर होना चाहिए था, तो 2 रूट I1 इंटू रूट I2 cos 5, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब मुझे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, ये इंटेंसिटी की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये? इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये तो एम्पलीट्यूड आ गया और ये क्या आ गया? इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ये आ गई यहाँ पे। अब ये डिस्कशन करने के बाद अब मैं केस लिखूंगा यहाँ पे किसका? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो अब यहां से हटा रहे हैं, यहां से समझ में आ गया? ये निकालेंगे, पहले ये वाली इक्वेशन निकालोगे आप पहले, ठीक है? ये इक्वेशन निकालने के बाद आप इंटेंसिटी पा जाना, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये निकाल लेंगे। फेज डिफरेंस फिर आ जाएंगे थर्ड पे, फेज डिफरेंस थीटा तक नोट कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आ गए एक बार उनको लिख लेते हैं। हमारे पास एक तो एम्पलीट्यूड निकल के आ गया, a इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos 5, ओके, ये निकल के आ गया। दूसरा आपके पास इंटेंसिटी निकल के आ गई, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 रूट I2 cos 5, right? And theta you also get tan inverse a2 sin phi over a1 plus a2 cos phi। ये हमारे पास तीन रिजल्ट ऑब्टेन हो गए विद द हेल्प ऑफ द सुपरपोजिशन। ये सारा नोट कर लेंगे आप, ठीक है? मैं रिजल्ट रख रहा हूं आपको अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव केस बताने के लिए। अब ये लिखने के बाद आप कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? वही अभी जो मैंने बताया था, when the two waves and these waves superpose on each other in same phase, then constructive interference occurs. When these waves superimpose in same phase, then amplitude and intensity of resultant wave becomes maximum
दिस फिनोमेना दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड भी और इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी मैक्सिमम जब सेम फेज में होंगे। देखना अभी बिकम्स मैक्सिमम दिस फिनोमेना is known as constructive interference। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस इन इक्वेशंस को नाम दे देना आप ए दिस वन एंड बी। सेम फेज का मतलब क्या है फाई की जो वैल्यूज हैं 0 हो 2 पाई हो 4 पाई हो 6 पाई हो 8 पाई हो इवन मल्टीपल हो पाई का। देन देखो वहां से एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। एक ही रखना cos 0 रखो चाहे 2 पाई रखो या 4 पाई 6 पाई 8 पाई सबकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आती है। ठीक है तो ये cos 0 तो 1 हो जाएगा यहां से। ये क्या होगा 1। तो हमें एम्पलीट्यूड क्या मिला यहां से रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। ये a प्लस b का होल स्क्वायर है क्या यहाँ से a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू यू कैन राइट रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सो a इक्वल टू मिल गया ऑब्टेन हो गया आपको a1 प्लस a2। ये a मैक्सिमम है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हो गया आपको। ठीक है एंड इंटेंसिटी की बात करेंगे वहां से वो क्या ऑब्टेन हो रही है देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव फाइव वैल्यू 0 रखो cos 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये तो I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 ये 1 हो गया था। अब इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या यस वी कैन राइट। बट कैसे लिखोगे इसको रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर ये 2 रूट I1 और ये रूट I2 ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया I इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो गया। I इक्वल टू क्या हो गया तुम्हें रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था a इक्वल टू a1 इसका होल स्क्वायर हुआ था तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इंटेंसिटी क्या मिल गई आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिल गई है I इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2। अगर ऐसा हो यहाँ पे देखो यहाँ से इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a हो एम्पलीट्यूड भी सेम हो दोनों वेव्स के तो यहाँ से a मैक्सिमम क्या मिल जाएगा आपको 2a के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब जब ये ऐसा है एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटीज भी सेम होंगी। इफ I1 इक्वल टू I2 देन ये क्या हो जाएगा I इक्वल टू इसको देखो यहाँ पे 2 रूट I हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट I1 इक्वल टू I2 I1 इक्वल टू इसको चलो देन I इक्वल टू 2 रूट I1 होल स्क्वायर। सो I इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 I1। तो I मैक्स हो गया ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन हो गई। ओके तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई ये ऑब्टेन हो गई आपको। क्लैरिफाई हुआ क्या आपको। तो ये हमने यहाँ से इंटेंसिटी ऑब्टेन की है ये इंटेंसिटी निकल के आई कैसे निकाली थी अभी मैंने वहां पे उस तरीके से ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये मीन आ गई। तो ये मैक्सिमम केस में ये 1 हो जाएगा और ये 1 होने पर यहाँ से प्लस 2 रूट I1 प्लस रूट I2 cos फाइव 0 cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये होल स्क्वायर बना दिया मैंने इस तरीके से तो I मिल गया था आपको ये। ठीक है और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है क्या है ये मैक्सिमम। ओके फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा केस डिस्कस करेंगे केस सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। When destructive interference occurs कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होता है
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर जब होता है जब ये जो वेव्स थी जिनके बीच में फेज डिफरेंस फाई था ये अपोजिट फेज के साथ सुपर इम्पोज हो जाए। अब सेम फेज कैसे होता है, देखो ये दोनों वेव्स एक दूसरे पर ऐसे सेम फेज से सुपरपोज हो गई, इनका अपोजिट फेज में ऐसे ये इस तरीके से अगर सुपरपोज हो रही है, जहां पे भी इनका सुपरपोजिशन हो रहा है मीडियम में, वहां अगर इस तरीके से हो रही है तो देखते हैं हमारा एम्पलीट्यूड क्या आता है और इंटेंसिटी क्या आती है, निकलती है मिनिमम आएगी इस केस में। व्हेन these waves superpose in opposite phase on each other, then amplitude and intensity of resultant wave becomes minimum. Okay, amplitude and intensity of resultant wave becomes minimum. So if phi equal to पाई cos पाई की वैल्यू -1 होती है, 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस तरीके से हो। ओके, तो यहां इस तरह के होंगे यहाँ पे, तब एम्पलीट्यूड देखो a इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos पाई रख दो पहले, क्योंकि सारी वैल्यू सेम होगी, 3 पाई रखोगे तब भी वही वैल्यू आएगी, पाई पे 3 पाई पे 5 पाई पे 7 पाई पे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई होंगे जितने भी उन सब पर cos की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर, cos पाई -1 होता है तो a इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखो cos पाई -1 होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहां से -2a1 a2, अगर इसको निकालोगे आप तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2 का ये होल स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर, तो a क्या मिल गया, a मिनिमम ऑब्टेन हो गया आपको a1 माइनस a2, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑब्टेन हो गया। अगर a1 a2 यहां सेम हो, जैसे मैंने ये केस दिया था, दोनों के एम्पलीट्यूड भी अगर सेम होते तब क्या हो जाता, if a1 equal to a2 then a minimum becomes 0, यानी जो रेजल्टेंट वेव बन रही थी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, 0, तो रेजल्टेंट वेव बनती ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो रेजल्टेंट वेव फॉर्म नहीं होगी उस केस में। अब इंटेंसिटी निकालेंगे यहाँ, तो इंटेंसिटी ठीक यहाँ पे रख दोगे आप, माइनस आ जाएगा -1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पे आप स्टेप्स करोगे, यहाँ पे कर ले रहे हो, कंस्ट्रक्टिवली सटा रहे हो, a1 इक्वल टू a2, a मिनिमम क्या हो गया 0, इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos पाई, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 और रूट I2 cos पाई -1 होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं a1 इक्वल टू a2, तो I1 I2 इक्वल होंगे, इफ I1 इक्वल टू I2 देन I इक्वल टू क्या होगा, रूट I1 माइनस रूट I1, I इक्वल टू 0, I मिनिमम हो गया 0। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के दोनों केस मैंने आपसे डिस्कस किए। एक बार पूरा कंप्लीट समराइज करा रहा हूं मैं आपको, और समराइज में देखना हम क्या क्या रिजल्ट ऑब्टेन करके लेके आए हैं। हमने दो वेव इक्वेशन ली थी, एक y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx, दूसरी वेव इक्वेशन ली थी y2 इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई। ये मैंने फाइनली लिख करके बताया था आपको किस तरीके से प्रोड्यूस हुई है, डायग्राम बता करके आपको ये, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a2, ये रहा यहाँ पे a2
a2 sin phi ओवर a1 प्लस a2 cos phi। इस तरीके से ये मिल गया था। पहले आप ये मैथमेटिकल पोर्शन पूरा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तब उसके बाद आप बात करोगे किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। किसी ने अगर बीच में कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी दोनों केस देखने के बाद फेज डिफरेंस बाद में निकाल सकते थे, लेकिन बेटर यही है कि आप ये पहले 3 स्टेप कर लें, फिर उसके बाद केस फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और केस सेकंड डालेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेस सेम फेस में दोनों की दोनों वेव्स सुपर इम्पोज होनी चाहिए एक दूसरे पर, और डिस्ट्रक्टिव के लिए दोनों अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव केस 1, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बताया था, दोनों की दोनों वेव्स हमारी सुपरपोज होनी चाहिए किसमें, सेम फेज में, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव केस में आपने देखा कि जो एम्पलीट्यूड था वो आ गया था आपका a1 प्लस a2। इस तरीके से इंटेंसिटी निकल के आई थी रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आई थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इंटेंसिटी हो गई यहाँ पे, और ये एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव केस में। तो जब ये ऐसे हो, और अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस जो था क्या था, k डेल्टा x था, स्टार्टिंग मैंने बताया था, और k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इससे भी आप निकाल सकते हो क्या, कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई है, एक बार 0, एक बार 2 पाई, एक बार 4 पाई, 6 पाई। तो यहां से डेल्टा x निकाल सकते हो। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस, कि किन पाथ डिफरेंस पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा और किन पाथ डिफरेंस पर हमें डिस्ट्रक्टिव। ये फाई को जनरली क्या लिख सकते हो ऐसे, फाई यहां से हो गया 2n पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे पाई इक्वल टू 2n पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। यहां लिख लेना, जब कंस्ट्रक्टिव केस लिखोगे इसमें पाई इक्वल टू दिस वन, that is phi equal to 2n pi where n equal to 0, 1, 2, 3। ओके, तो ये यहां से डेल्टा x क्या मिलेगा, देखो अगर 2 पाई बाई लैम्डा फर्स्ट लेते हो 0 इंटू डेल्टा x, सो डेल्टा x विल बी 0। क्या होगा, फर्स्ट केस के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लोगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x इक्वल टू 2 पाई। मैं पाथ डिफरेंस बता रहा हूं, जो कितने पाथ डिफरेंस पर तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कितने पाथ डिफरेंस पर आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो यहां से देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 1 मिलेगा, तो डेल्टा x आपको मिल गया लैम्डा। पहले बना था 0, दूसरा मिल गया लैम्डा। तीसरा देखो 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, वो 4 पाई है, ये ट्वाइस 2 बार कैंसिल होगा, तो डेल्टा x क्या मिल गया 2 लैम्डा। इस तरीके से तो पाथ डिफरेंस का कितना हो, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 2 लैम्डा के बाद आ जाएगा 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। जब वहां से वो क्या आएगा 6 पाई, 6 पाई 2 से काटो तो 3 आ जाएगा, तो 3 लैम्डा आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 0 रखो, n इक्वल टू 0 रखो तो पूरा 0 हो जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। n इक्वल टू 1 रखो, यहाँ 1 रखो, 2 से 2 कैंसिल होगा, लैम्डा आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखो, 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस जनरल। अगर हम जनरली लिखना चाहें तो मतलब पाथ डिफरेंस किसका, ये लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल हो, तब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा। पाथ डिफरेंस कितना हो, इफ द पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीप्लिकेशन ऑफ लैम्डा बाई 2, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड। एक तो फेज डिफरेंस बताया मैंने, फेज डिफरेंस के बेस पे बता सकते थे। दूसरा पाथ डिफरेंस के बेस पे बता सकते हैं कि अगर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 की इवन मल्टीपल है तो भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा। ओके, इफ path difference
between both waves is even multiple of lambda by 2, then कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस बता दिया। सिमिलर वे में आप डिस्ट्रक्टिव के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आप कंस्ट्रक्टिव की बात करोगे, जहां आप ये फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इन वैल्यूज पे, ये सब निकालोगे, मैक्सिमम वाला कहानी आ जाएगी आपकी, ए मैक्सिमम मिल जाएगा, ए मिनिमम ए मैक्सिमम मिलेगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तब आप बताओगे इन फेज डिफरेंस पे हमें, यानी फाई इक्वल टू 2n पाई पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन हो रहा है वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3। दोबारा से सुनो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहां तक ले आएंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और इंटेंसिटी मैक्सिमम तक नोट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 2n पाई वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, एंड आल्सो वी नो फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू k डेल्टा x, इससे तो इससे निकालोगे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस ही आ गया जनरली 2n लैम्डा बाई 2। अगर कभी आपसे पाथ डिफरेंस पूछ लिया जाए किस पाथ डिफरेंस पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन हो रहा है, तो वो लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल हो, किसका इवन मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब देखो एक नजर से आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस कि किन कंडीशन में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस के लिए हमने फेज डिफरेंस क्या लिया था डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए केस सेकंड डिस्ट्रक्टिव आपने लिया था फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब फाई आपने लिया था और मल्टीपल 2n प्लस 1 इंटू पाई, ऐसे। इस पर हमें a में मिनिमम मिलेगा, वो मिला था a1 माइनस a2, और आई मिनिमम ऑब्टेन हुई थी रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2, ये ऑब्टेन हुए थे। यहां से आप वी नो पाई इक्वल टू 2 पाई बाई पाई इक्वल टू k डेल्टा x, पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। पाई की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे पाई को डायरेक्ट रख लो, दैट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x। पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो लैम्डा बदल लेके जाओ, डेल्टा x क्या हो गया, डेल्टा x हो गया 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा। 2n प्लस 1 मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, और 0 1 2 3 रखोगे आप, 0 रखा तो लैम्डा मिलेगा, 1 रखा तो क्या मिला 3 मिला। इट मींस अब आपको फेज डिफरेंस कितना हो, ऑड मल्टीपल हो किसका, लैम्डा का। पहले किसका था, इवन मल्टीपल था लैम्डा बाई 2 का, लैम्डा बाई 2 का। अगर लैम्डा बाई 2 में लिखना चाहें तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिखने इसको जनरली और मल्टीपल किसका है, लैम्डा का। व्हेन द पाथ डिफरेंस इज और मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन। क्लियर हुआ। तो गाइस हमने इंटरफेरेंस फिनोमेना की स्टडी की है, जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया हमने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पूरा कंप्लीट लेकर के आए। सबसे फर्स्ट स्टेप में सुपरपोजिशन किया दोनों वेव्स का, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ऑब्टेन की, फिर एम्पलीट्यूड निकाला, देन इंटेंसिटी एंड देन रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस ऑब्टेन किया। उसके बाद दोनों केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे, फिर इंटेंसिटी निकालोगे। किस फेज डिफरेंस पर ऑब्टेन हो रहे थे, वो फेज डिफरेंस यहाँ लिख दोगे 5/2n पाई, दैट इज n इक्वल टू 0 1 2 3। इस फेज डिफरेंस में मिल रहा था हमें कंस्ट्रक्टिव। पाथ डिफरेंस की बात कर दोगे डायरेक्टली भी आप इससे यहां से लिख सकते हो 2n पाई, वी नो, ऐसे वी नो, अभी जैसे ये बताया था मैंने, वी नो पाई इक्वल टू k डेल्टा x, वहां से भी रख देंगे पाई इक्वल टू k डेल्टा x, ऐसे रख दोगे, तो पाई आएगा 2n पाई, और क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा, और ये हो गया डेल्टा x, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा x क्या हो गया, सॉरी पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ आएगा n, ये n है, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा। ओके,
मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा था, 2 से डिवाइड करके n इक्वल टू 0.23 है, ठीक है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसी वजह से किया था कि आप आसानी से बता सकते हो। ये इवन मल्टीपल हो गया किसका, लैम्डा बाई 2 का, इसका तो कंस्ट्रक्टिव हो गया, और ऑड मल्टीपल हो किसका, लैम्डा का, तो डिस्ट्रक्टिव ऑप्टेन होगा, ठीक है। तो दोनों केस इस तरीके से डिस्कस कर दोगे यहाँ पे। तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हुआ किसका, इंटरफेरेंस का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम यंग्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस के लिए, यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।